everyone, welcome. So this is Phase Equilibria Part 2. Its first part has already been uploaded on the channel where we have discussed about some basic concepts including phase, number of components, etc. And we have also discussed how we can find out the number of components, how we can find out the number of phases and everything, every basic concept which is required to study this topic we have already discussed. So you can go and check there. Now in this video we will discuss degree of freedom. Yes, that what is degree of freedom, how it is find out, and what is the formula which is used to find out the degree of freedom, what are the requirements to find out the degree of freedom, and everything about degree of freedom. So let's begin. So first of all, it is very important for us to know the definition of degree of freedom, which is frequently asked. So the first point which I would like to discuss, that it is also known as variance. Yes, frequently it is known as variance, and it is defined as the minimum number of independent variables such as temperature, pressure and concentration. Yes, जो independent variables होते हैं वो होते हैं temperature, pressure और concentration. तो ये हम इसे डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, जो कि स्पेसिफाई होना चाहिए इन ऑर्डर टू कैरेक्टराइज द सिस्टम कम्प्लीटली, ताकि हम सिस्टम को डिफाइन कर सके कम्प्लीटली. तो दैट इज नोन एज डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो वंस अगेन, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन which must be specified in order to characterize का मतलब हुआ कि to define the system completely. So does a system having one degree of freedom is called univariant. Yes, if a system is having one degree of freedom, that is called univariant. अगर किसी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के बाद 1 आता है तो उसे हम बोलेंगे यूनिवेरिएंट. लाइकवाइज अ सिस्टम विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम उसे बोलेंगे बाई वेरिएंट. मतलब हमने सीखा कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हम उसे वेरिएंस भी कहते हैं. फ्रीक्वेंटली डिग्री ऑफ फ्रीडम को वेरिएंस ही बोला जाता है. तो अगर किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता है तो दैट विल बी नोन एज बाई वेरिएंट. अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता है तो दैट विल बी कॉल्ड इनवेरिएंट और नॉन वेरिएंट. यस, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 आता है तो हम उसे इनवेरिएंट कहेंगे या फिर नॉन वेरिएंट कहेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ वेरिएंस विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो अगर हम फाइंड आउट डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने के फॉर्मूला की बात करें तो दिस फॉर्मूला हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस इन द फर्स्ट पार्ट, बट स्टिल this is the formula to find out the degree of freedom. P plus F is equal to C plus 2. Yes, so P stands for phase. Number of phases कितना है किसी सिस्टम में वो हम लिखेंगे यहाँ पे. P stands for number of phases. F is degree of freedom. C is number of components. Always remember all these, they are very important. So P plus F is equal to C plus 2. P number of phases, F degree of freedom, C number of component and plus 2. तो हमें यहाँ फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तो F को हमने यहीं पे छोड़ दिया. बाकी इट इज़ इक्वल टू C प्लस 2 तो यहाँ पे था ही तो वो यहाँ रहेगा. P राइट साइड में आके माइनस में हो जाएगा. तो सो डिग्री ऑफ फ्रीडम F इज इक्वल टू C प्लस 2 माइनस P. आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ लेट्स understand all these degree of freedom with some examples. So I'll discuss 7 to 8 examples in this particular video on this particular topic, that how to find out the degree of freedom. So let's begin with the first example, and that is ice, water and water vapor. So ये इस example में ये तीनों ही equilibrium में हैं. तो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि अगर हम फेज इक्विलिब्रिया पढ़ रहे हैं, फेज रूल वी आर अप्लाइंग हेयर, तो उसके लिए सिस्टम का इक्विलिब्रियम में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. इफ़ द सिस्टम इज़ इन इक्विलिब्रियम देन ओनली दिस फार्मूला, दिस फेज रूल विल बी अप्लाइड. ओके, तो हम देख सकते हैं आइस, वाटर और वाटर वेपर ये तीनों ही आपस में इक्विलिब्रियम में हैं, इसीलिए हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. तो हम देख सकते हैं फेज, नंबर ऑफ फेज यहाँ पे 3 होंगे. क्यों? क्योंकि आइस क्या है? सॉलिड, वाटर लिक्विड और वाटर वेपर गैस, राइट. तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू 3. नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 होगा. क्यों? क्योंकि आइस हो या वाटर वेपर हो, तीनों ही वाटर से मिलके बने हैं, H2O से मिलके बने हैं, इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 होगा.
वी नो, हम जानते हैं कि P प्लस एफ इज इक्वल टू C प्लस टू, दिस इज फेज रूल, एंड हमें फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो वी हैव टू फाइंड आउट F. हमें पता है P और C के बारे में. वैल्यूज पुट करने के बाद वी विल फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 0. एंड वी नो if the system is having degree of freedom 0, that is known as invariant या फिर non-variant. I hope it is clear. And let's come to the next example, and that is water and vapor. Yeah, water and vapor, they are in equilibrium. Water क्या है? Liquid phase में है. Vapor क्या है? Gaseous phase में है. तो number of phase कितने हो जाएंगे? 2. नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट 1. वाई? बिकॉज वाटर हो या वाटर वेपर, इनका जो कॉम्पोनेंट है दैट इज H2O, है ना. दैट इज वाई number of component is 1. And we know that P plus F is equal to C plus 2. So 2 plus F is equal to 1 plus 2. This is plus 1 plus 2. So degree of freedom it is equal to 1. And if a system is having degree of freedom 1, that is known as univariant. We need to remember this actually. Yeah, let's come to the next example, and that is calculate the number of phase in a mixture of 4 gases present in a vessel. Yes. So क्या है कि एक वेसल है, उसमें 4 गैसेस प्रेजेंट है. मान लो गैस 1, गैस 2, गैस 3, गैस 4, ये चारों गैस प्रेजेंट है. तो अब उसमें नंबर ऑफ़ फेज़ कितने होंगे? तो जब हम पढ़ रहे थे नंबर ऑफ़ फेज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके क्या क्या रूल्स एंड कुछ होते हैं, तो वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि जो नंबर ऑफ़ फेजेस होते हैं, अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस है तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ फेजेस 1 ही होता है, क्योंकि बिकॉज गैस इज हैविंग 1 फेज ओनली, तो दैट इज़ वाई दिस will have only 1 phase, right? And we will move to the next example, and that is a mixture of nitrogen and oxygen gas present in a vessel. या एक वेसल है, उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों ही गैसेस प्रेजेंट है. सो सबसे पहली बात तो ये कि नंबर ऑफ फेज कितने होंगे? 1 होंगे, क्योंकि एक वेसल में आप 4 गैसेस रख दो, या फिर 2 रख दो, या फिर 10 रख दो, नंबर ऑफ फेज तो 1 ही रहने वाला है. तो नंबर ऑफ फेज तो 1 ही रहेगा. नंबर ऑफ कंपोनेंट यहाँ पे 2 रहेंगे. क्यों? क्योंकि जो दोनों गैसेस हैं ना, दे आर डिफरेंट. यस, ये कंपोनेंट तो अलग ही अलग है ना, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, इनके फेज सेम हो सकते हैं, बट द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट गैस. And we know P plus F is equal to C plus 2. So by putting this value to this formula, we will get degree of freedom, that is 3. So 3 है ना, 2 plus 2, 4 minus 1, 3. Yes. Okay, let's move to the next example, and that is solid carbon in equilibrium with gaseous carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen at 100 degree Celsius. 100 degree Celsius तो बस ये ऐसे ही है, डराने के लिए है, बट हमें ना इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी हमें एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन मिले जहाँ पे हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले वी हैव टू चेक आउट कि वहाँ पे वो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमें फाइंड आउट करना है कि सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं. अगर नहीं है तो सबसे पहले हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाएंगे, एंड देन आफ्टर वी कैन फाइंड आउट द डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो हम यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड कार्बन है जो कि इन इक्विलिब्रियम है, और ये सबसे ज़्यादा राहत की बात है कि इक्विलिब्रियम में हमें कुछ करना नहीं है. तो सॉलिड कार्बन इक्विलिब्रियम में है विद गैसियस. देखो सॉलिड गैस फेजेस वी हैव टू count the phases, number of phases. So solid carbon, gaseous carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen. तो नंबर ऑफ फेज यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे. एक तो सॉलिड हो गया और एक गैस हो गया, है ना. 1 सॉलिड और 3 गैसेस. और नंबर ऑफ कंपोनेंट कितने हो जाएंगे? 2. क्या है? कार्बन एंड ऑक्सीजन. And we know P plus F is equal to C plus 2. So we will get the degree of freedom, that will be 2. अगर किसी सिस्टम के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 रहता है तो that is known as bivariant. Let's move to the next example, and that is H2O solid, H2O liquid and H2O gas. और ये तीनों ही इक्विलिब्रियम में है. दिस इज जस्ट सेम एज द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड हियर, दैट इज H2O सॉलिड यानी कि आइस, H2O लिक्विड यानी कि वाटर, एंड H2O गैस यानी कि वेपर. बट द डिफरेंस इज द वे ऑफ प्रेजेंटेशन इज डिफरेंट, बट द फैक्ट इज सेम, राइट.
So we don't have to get confused about this. We have to just open our mind and we have to work on that. तो सबसे पहले हम देखेंगे वाटर है सॉलिड, तो कुछ करना ही नहीं है इसमें. फिर नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 क्योंकि वाटर ही है. नंबर ऑफ फेज कितने हो जाएंगे यहाँ पे 3, सॉलिड लिक्विड एंड गैस. ठीक है. And by applying this formula P plus F is equal to C plus 2 and by putting these values we will get the degree of freedom 0. उस एग्जाम्पल में भी हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 ही मिला था और हमेशा 0 ही मिलेगा ऐसे सिस्टम में, भले ही हम उसे चेंज कर दें कितना भी. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 का मतलब दिस इज नॉन वेरिएंट और वी कैन से दिस इज इनवेरिएंट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl. हाँ, हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन की भी बात वहाँ पे डिस्कस की थी जब हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे नंबर ऑफ फेजेस. तो इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू मस्ट फर्स्ट गो टू दैट फर्स्ट वीडियो सो दैट यू कैन ईजिली गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस. सो लेट्स सी. नंबर ऑफ फेज यहाँ पे 2 होगा. वाई? क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड वर्ड यहाँ पे यूज़ हो चुका है. NaCl है ना, तो नंबर ऑफ फेज 2 क्योंकि यहाँ पे सैचुरेटेड वर्ड यूज हो चुका है. नंबर ऑफ कंपोनेंट 2 यहाँ पे रहेगा और जो हमारा फॉर्मूला है दैट इज P plus F इज इक्वल टू C plus 2. सॉरी दिस इज C plus 2. तो जब हम ये अपने जो वैल्यूज़ हैं इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वी विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, जिसका मतलब है हम कह सकते हैं कि सिस्टम इज बाई वेरिएंट. Now let's move to the next example and that is a mixture of ice, water and water vapor at the triple point of water. This is also the third version of that first example. तो सॉरी वाटर सिस्टम है ये. ओके, ये जो वाटर सिस्टम है ये हम अगले वीडियो में हम वाटर सिस्टम ही डिस्कस करने वाले हैं. पर यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ वाटर सिस्टम में एक ट्रिपल पॉइंट होता है और इस ट्रिपल पॉइंट पे ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैस यानी कि आइस, वाटर और वाटर वेपर ये तीनों ही इक्विलिब्रियम में रहते हैं. आ गई इक्विलिब्रियम की बात. ये तीनों ही इक्विलिब्रियम पे रहते हैं. दैट इज़ नोन एज ट्रिपल पॉइंट. तो जो ट्रिपल पॉइंट है वहाँ पे सॉलिड लिक्विड और गैस यानी कि आइस, वाटर और वाटर वेपर इक्विलिब्रियम में रहते हैं. तो हम यहाँ पे अपना फेज रूल आराम से अप्लाई कर सकते हैं. हमारा नंबर ऑफ फेज 3 होगा सॉलिड लिक्विड गैस और नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 होगा क्योंकि तीनों में ही नंबर ऑफ कंपोनेंट कंपोनेंट जो है वो वाटर है इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट 1 होगा. एंड वी नो द फॉर्मूला फेज रूल दैट इज P plus F इज इक्वल टू C plus 2. और जब हमने अपना ये जो वैल्यू वी आर हैविंग इसको जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वी विल गेट डिग्री ऑफ फ्रीडम 0. सो वी कैन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 हमें इन तीनों ही केसेस में मिला. हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गया बट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज सेम, इट विल रिमेन सेम. 0 का मतलब इट इज़ यूनिवेरिएंट और नॉन वेरिएंट और इनवेरिएंट. सो I think it is clear to all of you that how we can find out the degree of freedom, and that it was the last example which I was discussing, and that's all for today's class. I hope it was very useful for you. Thank you so much.